السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عظمت اطہر اور آج میں ایک ایسی جگہ پر آئی ہوں جو بہت ہی اچھی، بہت ہی بیوٹیفل ہے، اور یہاں پر مروجہ تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور یہاں پر اسلامک بکس بھی پڑھائی جاتی ہے جیسے فقہ، حدیث وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے سراج العلوم۔ اور جو یہ کالج ہے یہ ہلاؤ امام صاحب شپیہ میں ہے، اور یہاں پر 5th سے لے کر گریجویشن تک پڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا گراؤنڈ بھی کتنا بڑا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کالج ہے اس کی عمارت کتنی خوبصورت دکھ رہی ہے، اور یہاں پر مروجہ تعلیم کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، حفظ بھی کرایا جاتا ہے، اور باقی سب اسلامک کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی جامعہ سراج العلوم کی جامع مسجد۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ جامع مسجد کتنی خوبصورت دکھ رہی ہے، اس کے مینار کتنے اچھے ہیں، کتنے خوبصورت دکھ رہے ہیں۔ اور جو اس کا گراؤنڈ فلور ہے وہاں پر بچوں کو قرآن شریف حفظ کرایا جاتا ہے، اور جامع مسجد میں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو گراؤنڈ فلور کے اندر لے چلوں گی اور وہاں پر اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ دکھاؤں گی۔ اس کے بعد میں دوسرے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، فیضان شبیر، وہ یہاں پہ آئے اور اپنا ٹاپک پیش کریں۔ وصدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے جنہوں نے یہ دین اسی طرح ہم تک پہنچایا جس طرح ان پہ نازل ہوا۔ ثابت قدمی اور اولو عزمی کا تذکرہ کرو، ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ مزید باتیں ہمارے سامنے آ جائے۔ تو بھائی آپ کا نام، آپ کہاں سے ہو اور آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ میرا نام زاہد بشیر ہے اور میں ضلع بارہمولہ سے ہوں، اور میں یہاں پر حفظ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے لگ بھگ 2 سال ہو چکے حفظ میں، اور میں نے 29 پارے مکمل حفظ کیے ہیں۔ تو بھائی یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے سیدھا مدینہ یونیورسٹی جانا ہے، اور مجھے بہت شوق بھی ہے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کا، اور مجھے وہاں پر بہت سی تعلیمات حاصل کرنی ہے، پھر اپنے معاشرے میں جانا ہے۔ مجھے شوق ہے کہ میں بڑا ہو کر اسلامک اسکالر بنوں۔ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اب میں آپ کو کالج بلڈنگ میں لے چلوں گی، اور وہاں پر ٹاپرز کے لیے فنکشن رکھا گیا ہے، اور آپ وہ بہت اچھے سے دیکھیں گے۔ چیئرمین صاحب، وردی وائس چیئرمین، ریسپیکٹڈ پرنسپل، ڈیئر اسٹاف ممبرس and my beloved students, I wish you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You all might be aware about this thing that today we have a grand ceremony here, that is facilitation ceremony. We will start this program as usual with the recitation of some words of Holy Quran. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم. For now, I would like to call Zain bin Tariq, سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. Our esteemed Vice Chairman صاحب Mr. Farooq صاحب. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تمہِ قومٕچ حالت توٚتام بدلاوان کینٛہہ یوٚتام یہِ قوم پنٕنۍ أنٛدروٗنی حالت بدلایہِ. باقٕے اَسہِ چھِ پنٕنۍ زٕ حال بدلاوٕنۍ. اکھ گژھِ دُنیا سانیو اتھو آباد گژھُن، بیٚیہِ گژھِ سانیو اتھو آخرتُک گرٕ تہِ آباد گژھُن. I would like to call our esteemed Chairman Sahab to provide these students the mementos. Hafiz ibn Bilal
who got 492. That is 98.4%. His name is Yasir Shabi, who again was achieved 492 and his percentage is 98.4. Hafiz Naveed Gulzar and his has got 490 marks, that is 98%. Arbaz Bashir, again he is a Hafiz as well, 96.4%. Then we have from class 12, Irfan Ahmad Sufi, Mohsin Nabi, person. Junaid Shafi, Hafiz Urful Islam, then we have person. Then we have Sahil Gul, receive another award. Esteemed distinguished Chairman Sahab to come on dice. Alhamdulillah Rabbil Alameen. गर्द में खाही मुसलमान जीस्तन नेस मुमकिन जुज बकुरां जीस्तन। जब तक कि इंसानी नस्ल को जदीद उलूम के साथ साथ इखलाकी तालीमात मॉरल एजुकेशन से मुनव्वर न किया जाए तब तक ये मकासद हासिल नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जामे सिराजुल उलूम की बुनियाद इन्हीं अगराज को हासिल करने के लिए डाली गई है जो हमारे बुजुर्गों और असलाफों के अरमान है। इन मकासद को हासिल करने के पेश नजर आज तक हमने सैकड़ों से ज्यादा हुफ़ाज़ किराम और इसके साथ साथ वो साइंसी उलूम पढ़कर डॉक्टरेट करने में कामयाब हो गए। हम हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर कितनी अच्छी फंक्शन रखी गई थी टॉपर्स के लिए। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से मैं बात करूँगी जो टॉपर्स हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरा नाम नवीद गुलजार है और मैं शोपियान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ करता हूं जिसका नाम है सुगु हंधामा। मैं जामे सिराजुल उलूम में 2016 से पढ़ते आ रहा हूं। 2 साल में मैंने यहाँ हिफ़्ज़ भी किया है और हाल ही में मैंने 10th का क्लास जो है वो पास किया है। तो भाई आपके कितने नंबरात आए हैं और आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा कि अल्लाह ताला जिसको चाहे वो उसे इज़्ज़त दे देता है और जिसको चाहे ज़लील कर देता है। मैंने हाल ही में जो 10th का एग्ज़ाम जो है वो पास किया था, मेरे 98.2% मार्क्स आए थे और थ्रू आउट द ईयर मैंने अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा है और टीचर्स और अपने इंस्टीट्यूशन का जो है अच्छा सपोर्ट मिला है। इंडिविजुअल लेवल पर मेरे टीचर मुझसे इंटरेक्ट करते थे। थ्रू आउट द ईयर वो मुझे स्ट्रेटजीज़ बोलते थे कि किस तरीके से आपको पास करना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है और थोड़ा सा स्ट्रगल आपको खुद अपने लेवल पर भी
करना होता है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट आपको रहना होता है पढ़ाई से। अगर आप मिनिमम कुछ नहीं पढ़ोगे तो एटलीस्ट 2 आवर्स आपको डे में पढ़ना है। यही मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है थ्रू आउट द मतलब ईयर, कि मैं हर दिन 2 घंटे मिनिमम पढ़ता था, मैक्सिमम फिर कहीं ज़्यादा भी हो जाता था, बट 2 आवर्स डेली पढ़ता था। आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी देखिए, दूसरे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, लाइफ जो है एंजॉय भी करें बट पढ़े भी अच्छे से, अपने आप को मैनेज के। मैं नहीं कहूँगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कर ले, आप सेल्फ मैनेजमेंट कर ले, अपने आप को संवारे, अपने आप को संभाले। जहाँ पर आपको खेलना हो उस वक्त अच्छे से खेले, बिल्कुल दिल लगा कर खेले, और जब पढ़ने की बात आए तो उस पर भी अच्छे से मतलब आप दिल लगा कर आप पढ़े, और अपने टीचर्स के साथ कोऑपरेशन करें, अपने इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते रहे, उनके गाइडेंस में हमेशा रहे और उनकी बात को माने, तो इंशाल्लाह आपकी जो कामयाबी जो है वो आपके कदम चूम लेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जामिया सिराजुल उलूम के दूसरे टॉपर से बात करूंगी। भाई, आपका नाम, आप कहाँ से और आप किस क्लास में पढ़ते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ इब्न बिलाल है और मैं पिछले 3 साल से जामिया सिराजुल उलूम में ज़ेर तालीम हूँ। रिसेंटली मैंने JK बोस 10th ग्रेड एग्जामिनेशन 98.4 नंबरात से हासिल किया है। तो मैं कुलगाम के एक छोटे से गांव यमरश यारीपुरा से ताल्लुक़ रखता हूं। तो भाई, आप कश्मीर में तो बहुत सारे इदारे हैं, तो आपने इसी इदारे में क्यों एडमिशन लिया? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं अप टू 8th तक में अनंतनाग में एक स्कूल है सेंट जीन्स में, उधर पढ़ता था। तो सुनने में आया था कि ये जामिया सिराजुल उलूम एक शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हिल्लो इमाम साहब में लोकेट है जामिया सिराजुल उलूम, तो उधर दीनी और दुनियावी तालीम का दोनों का संगम है, ये सुनने में आया था। लेकिन जब मैंने 8th में इधर दाखिला लिया तो मैंने खुद देखा, जब मेरा पहला दिन था इधर 8th में, तो साइंस सर मेरे सामने आ गए। तो मतलब साइंस भी और कुरान भी, वो दोनों एक मिक्सचर के साथ आए। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि मतलब मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने जामिया में दाखिला लिया। तो यही वजह है कि मैं बाकी स्कूलों में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता उस वक्त, क्योंकि जब मैंने यहाँ एक दिन गुजारा तो मुझे एक अलग ही डिफरेंस देखने को मिली। और जहाँ तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक कंपैरिजन आप क्रिएट करो जामिया और दूसरे स्कूलों में। कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो जामिया का वैसे कंपैरिजन नहीं है किसी स्कूल के साथ, लेकिन ये ऐसी बात है कि जैसे हम एक घास के पौधे को चिनार के दरख्त से कंपेयर कर सकते हैं, तो ये ऐसी बात है। तो यहाँ यही ज़्यादा ख़ास बनाता है इसको कि दोनों तालीम, दुनियावी और आखिरत की तालीम भी हमें यहाँ मिलती है। तो भाई, आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम है? बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि आपकी वसातत से मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप जामिया से मुस्तफ़ीदा हो, क्योंकि ये वैली में लगभग नॉन अदर देन जामिया सिराजुल उलूम इज़ प्रेजेंट राइट नाउ। जामिया इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। Here we will get moral education and scientific, modern, ethical education. Here we will go. भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जामिया सिराजुल उलूम के तीसरे टॉपर से मैं बात करूँगी। तो भाई, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर शबीर है, मैं बाबापोरा का रहने वाला हूँ। मैंने अभी इसी साल 10th का बोर्ड एग्ज़ाम पास किया 492 मार्क्स के साथ। इस इदारे की फैसिलिटीज़ कैसी हैं और यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? इस इदारे के बारे में जितना भी बोलूँ वो बहुत कम है। यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, कभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन होता था वो फ़ोन करके हमें वो कन्फ्यूजन दूर करते थे, हमारे अप्स एंड डाउन्स में भी हमारा साथ देते थे। और यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पढ़ने के अलावा हमें दीनी तालीम भी दी जाती है, जो इस इदारे की सबसे बड़ी ख़ास बात है। मैं आपकी वसादत से स्टूडेंट से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस इदारे में आए और ख़ुद भी इस इदारे की वसादत से अपने आप को फ़ायदा पहुँचाए। तो भाई, बाकी स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम है? बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि मेहनत करो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप मेहनत करोगे और अल्लाह ताला पे भरोसा रखोगे, सभी कुछ पॉसिबल है। तो भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 12th के टॉपर से मैं बात करूंगी। भाई, आपका नाम, आप कहाँ से और आप किस क्लास में पढ़ते हो? जी, मेरा नाम समीउल्लाह राथर है, मैं शोपियां के गांव से गहन से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं यहां पर 12th क्लास में पढ़ रहा हूं। तो भाई, आप हमें यहाँ के सिलेबस और यहाँ की पढ़ाई के बारे में बताइए। जी, अगर हम बात करेंगे यहाँ के सिलेबस और पढ़ाई के बारे में,
जो यहाँ पर 10th के बाद है बहुत ही अच्छा स्कोप मिल रहा है, मेडिकल मिल रहा है, नॉन मेडिकल मिल रहा है, आर्ट्स मिल रहा है। आर्ट्स के साथ साथ आलिमियत भी कराई जाती है, जिसमें हमें अरबी पढ़ाया जाता है, फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है। और यहाँ पर BA में भी अरबिक पढ़ाती है। यहाँ पर जो लैंग्वेजेस पर है बहुत ही अबूर हासिल होता है। तो भाई आप यहाँ पर आके कैसा फील करते हो? जी, मैं यहाँ पर 2014 में आया हूँ। मुझे यहाँ पर लगभग 6, 7, 8 साल हुए हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ़ील किया है। यहाँ का माहौल, अगर हम बात करेंगे यहाँ के माहौल के, जो दूसरे स्कूल्स में हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे 5 वक्त नमाज पढ़ाई जाती है, और इसके साथ हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। हमें जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रात को भी यहाँ पर हमें टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 24 o'clock हमें मेहनत कराई जाती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो खाने पीने की, वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। तो भाई बाकी स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम है? बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि मेहनत करे और वक्त की कदर करे, क्योंकि वक्त की कदर जो इंसान करता है वही कामयाब होता है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अभी मैं सिराजुल उलूम की लाइब्रेरी में हूँ और यहाँ पर हमें एक नन्हे शायर मिले हैं। तो ये हैं हमारे नन्हे शायर, तो अभी हम इनसे बात करेंगे। तो भाई आपका नाम क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो और आप कहाँ से हो? जी, मेरा नाम रईस अहमद है और मैं कुलगाम के गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, और मैंने रिसेंटली 10th क्वालिफाई किया है 85% से। तो आपको शायरी का शौक़ कब से हुआ और आप अपनी शायरी में किस चीज़ का बयान करते हैं? मुझे शौक़ पिछले साल ही हुआ था, यही जामिया सिराजुल उलूम में। उसमें मैं अपने इस दुनिया के बारे में कहता हूँ कि रियलिटी क्या है अभी मॉडर्न ज़माने में, कि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँची है और हम इस टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदे हासिल करते हैं और क्या नुकसानात भी है। और मैंने यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ के दुनिया के हिसाब से पोएमें लिखे हैं कि अभी यहाँ दुनिया में क्या हो रहा है और इसके नुकसानात भी क्या है। तो भाई आपने कितनी पोएम्स लिखी हैं और आप किस ज़बान में शायरी करते हैं? जी, मैंने अब तक 25 पोएम्स लिखी है और मैं ये शायरी इंग्लिश में करता हूँ। आप अपनी शायरी किसी टीचर को दिखाते हैं तो वो आप को इस बारे में गाइड करता है? जी, यहाँ जामिया सिराजुल उलूम के एक टीचर आदिल साहब और जामिया सिराजुल उलूम के करंट प्रिंसिपल आसिफ साहब भी मुझे इस बारे में गाइड कर रहे हैं। और मेरा एक दोस्त था लियाकत अहमद, इंग्लिश में महारत है उसकी, वो भी मुझे बहुत गाइड करते थे। तो भाई दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम है? जी, मेरा ये पैगाम है कि उनको खेलने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, मतलब लिखना भी चाहिए, पैराग्राफ्स। इससे बहुत टैलेंट, जो आपका टैलेंट है वो बाहर आता है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त मैं जामिया सिराजुल उलूम के चेयरमैन साहब की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मैं इनसे अदब से कुछ सवालात करूँगी। मोहतरम चेयरमैन साहब, इस इदारे और बाकी इदारों में क्या फ़र्क है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इदारे और बाकी इदारों में फ़र्क सिर्फ, बाकी इदारे भी तालीम देते हैं, हम भी तालीम देते हैं, मगर हम समझते हैं कि दूसरे इदारों की तालीम नामुकम्मल है। हमारी, इसलिए हम इसे मुकम्मल समझते हैं कि हम इसे दीनी और असरी उलूम में इम्तिजाज रखना चाहते हैं। हम दोनों, जब तक हम समझते हैं कि जदीद तालीम के साथ साथ जब तक कि इखलाकी तालीम न दी जाए, इंसान एक सालिह मुआशरा के लिए काम नहीं कर सकता है, न इसमें वो सलाहियत पैदा हो सकती है। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने कितनी अच्छी बातें बोली। मेरी दुआ है कि जो सिराजुल उलूम है, सिराज का मतलब ही है सूरज, ये हमेशा चमकता रहे और इसके नूर से पूरी इंसानियत मुनव्वर हो जाए। तो ये है इस इदारे के प्रिंसिपल साहब। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत इज़्ज़त की, हौसला अफजाई की। और अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और आप सबको भी खुश रखे। आप मेरे लिए दुआ करना और मैं आपके लिए करूँगी। खुदा हाफिज़।